Okay, whatever you are doing, whenever you're writing, make sure that you write in a first simple 1 hour at a stretch, right? Don't break it. Correct? When you want to say, oh, I want to do it, I'm eating something and then I'll solving. No. It has to be taken as very serious attempt. Correct? Every paper on the top, you should write on what date you are solving. Preferably do it in PDF only because you just have to tick, right? If you want something, pick up, keep a blank paper here. You solve this, but on that also you have to write which set you are doing, which date you are doing, your name, and with the question number which you wanted to working. That's it. Okay, clear? And when you send, when I send to you, keep it as a scan copy with your folder on the same Gmail, Google Drive. And whenever you are solving this, we are solving this doubt. Okay, suppose somebody has a 22 as a doubt. She has a doubt at 22. Mishka is done. I'll ask Mishka, please explain. Okay. Then Prayan has a doubt in 29. So Devansh don't have a doubt on 29. He has solved. So look, explain. Devansh has a doubt in 32. Aditya don't have a doubt in 32. So I'll ask Aditya, please explain. Right? And then explanation के time पे if ऐसे के सर मैंने working किया था rough में किया था I don't have it now I will not accept this. So I'm giving you instruction well in advance. Is it clear everyone? Then we have to show the working also. No. You have to keep the working ready in the separate page. Mm. But whenever asking, suppose you how you solve this, right? Then you should be able to explain because I want to see even if you are working, how you are working it, right? Correct? And working will be required only 1 or 2 places, not everywhere. Is it clear? Mishka, Yes, is it sir. clear? Yes, sir. Devansh, clear? Brian, Aditya, Yes. Ritvi. Clear, Yes. sir. Every time you have to put a timer, stopwatch of 1 hour, and you have to do it in 1 hour time. If So 50 what if minutes, you I'm don't? very happy. 55 minutes, I'm still happy. 45 minutes, I'm very happy. But does not mean that to complete in 45 minutes, you do all the wrong. First is accuracy. Even you can do 48 questions, but if all 48 are correct, I am still happy. Clear? And you don't have to leave anything blank because there is no negative marking. Correct? You have to solve all of this. Now tell me what order you will follow. Quick. So What first, order of solving you first will follow? section. Huh? First your section. फिर? Date. Then the Hmm? daily mathematics. Hmm? Then logical reasoning and then mathematical reasoning. ओके चलो शिरीन तू बता शिरीन Can I say? हाँ बोल First mathematical reasoning, हम्म then logical reasoning, हम्म then achiever section, हम्म and then everyday mathematics. वेरी गुड ठीक है एनीबडी एल्स now I'll give you order. This is also a good order, but I take a logical reasoning little later on, right? Because there are some 4 or 5 questions which are little complex to solve. But I take the mathematical reasoning first. Second, I take a achiever section. Third, I take a logical reasoning. And fourth, I take daily mathematics. Clear? Why? Because daily mathematics has calculation involved. It any which will take time. I am not saying all the question will take time, but you may take time, right? There are total how many questions? 5. 50. 50. 50 questions, right? Out of this, only 10 are difficult or lengthy or complex or tedious, right? Which will consume time. When I'm saying it does not mean that you don't know how to solve. I'm saying it will consume time. So you should leave that and rest of the things you can do very fast. I was solving grade 5 ka achiever section. In 4 minutes, 6 minutes, I solved 4 questions. In fact, 5 minutes only, not even 6 minutes. Because 6 minutes तो मैंने explain करके उसको हो गया, right? So I could solve within a minute. I can solve some of the questions, right? One question each. I took only 1 minute in the achiever section. So I actually practically saved 10 to 11 minutes, which I can use for the all complex question, which is maybe in the calculation required, right? Is it clear? Yes, sir. What is the second advantage of doing achiever section? Because achiever section has 15 marks, only 5 questions. And usually they are not very tough. They say achiever section, but they are not very tough. Clear?
Yes. Yes, sir. What is required? You should have a plan in place. Your mind should be very good. Oh, I want to do this way. I'm good with this. Clear? Yes, sir. And even those questions you are taking, if there is something difficult or you think it will take time, please don't attempt at the first go. Clear? And you know what is a OMR sheet, right? How to? Okay, take a scale, preferably non-transparent. Okay, take it. Whenever you are marking it, make sure that you check the question number before marking it. Clear? Yes, sir. Done? समझ में आ गया? हाँ, sir. ठीक है. हाँ, sir. चलो. So now we'll open one of the question. Which question paper you want to attempt now? चलो. We'll see. This is we have already done, I guess. कुछ क्वेश्चन बाकी था क्या अपना लास्ट के? ओहो, देयर आर मेनी क्वेश्चंस आर रिमेनिंग. ए, चलो तुमने ये तो तुमने सॉल्व कर लिया, राइट? हाँ. एनी डाउट्स यू हैव इन ए? No. नहीं, चलो तो यहाँ पे आई जस्ट से क्वेश्चन सेट ए, क्लास पेपर सेट ए. ये कहाँ से आ गया? 23. ये भी ए है, ये भी ए है. दो कैसे हो गया? अच्छा, ओके ओके. ओहो, सर कौन सा पेपर है? एक सेकंड डार्लिंग, रुक जाना जरा, रुक जाना जरा, रुक जा, ओ जाने जाना. हाँ बा, हाँ बा, हाँ बा. उसमें एक डुप्लीकेट है, मैं हटा देता हूँ, नहीं तो तुम लोग वापस डुप्लीकेट कर लोगे. देयर इज वन सेट विच इज डुप्लीकेट. यार मैंने गलत डिलीट कर दिया. सॉरी सर सॉरी. क्वेश्चन पेपर कौन सा है? अरे शांत मेरे गदाधर भीम, शांत. Sorry. एक मिनट में ओपन करता हूँ बेटा, इधर शांति रख, शांतता ठेवा, घाई करू नका. सर हमको डाउट देखना है ना. डाउट तुमको देखना नहीं है, डाउट आएगा तो तुमको डाउट पोस्ट करना. देखना है, देख के क्या करेगी डाउट? मतलब वैसे ही बोल रहे हैं. एक तो हिंदी इतना कमजोर है, क्या करूं तेरा. तू इंग्लिश में बोला कर बेटा. यू कीप, यू कम्युनिकेट इन इंग्लिश. आई एम ओके. ओके सर. ठीक है. यस. चलो, आई एम टेकिंग दिस 2024 B, correct? ओके सर. I am sharing my screen and will solve. Okay. Can you see the screen? Is it visible to everyone? Yes, sir. Yes sir. Okay. So what I said, first we'll show mental mathematical reason, right? Yes, sir. So how many shapes in given figure to be shaded so that 3/7 figure is shaded, right? So how will you count now? Can you count how many triangles, squares are there? How will you count? हेलो, सर 28. कैसे किया? सर गिना 1 मैंने. 2 3 4 5 28, 6 7. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6. Correct? So 7 plus 8 plus 7 plus 6 is equal to 28, right? Yes, sir. Now 3 out of 7 you need to square. So what is 3 upon 7 into 4 into 4 is equal to 12. हो गया? Clear है? Yes, sir. Yes sir. So what I'm trying to tell you is it is very easy to solve these questions. Okay.
So I say 3. I'm just writing, so it will take little time, but at least you should know what I'm doing, right? Correct. So 12 is the answer, right? Sir. Chalo. Next. Okay. Now you can solve here also. We can solve like this also. How many lines segment are there in the given figure? Very good. 6. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. करेक्ट है. ठीक है. 1, 2, 3, 4, 5, 6. यहाँ से लेके यहाँ तक 6, 7 एंड यहाँ से लेके यहाँ तक 8. करेक्ट. Yes. ठीक है. दिस वन एंड दिस वन, राइट. No, sir. चलो ठीक है. नेक्स्ट. ये वाला वेरी इजी इट इज. ये बहुत इजी है, करने को आए तो. 17. क्या होगा बेटा? Yes, sir, I understood how to do. एक्स अपॉन वाई क्या होगा? सर 2 दिया है भाई. हाँ तो दे, उसमें क्या प्रॉब्लम है? सर x 6 होगा और y 2 होगा. करेक्ट. तो एक्स अपॉन वाई कितना होगा? 3. खत्म. 2 है वाई तो क्या हो गया? 2 अलग जगह नहीं हो सकता है? हैं? सर मेरे को लगा दोनों डिफरेंट होगा. कैसे होएगा? तू देवा स्कूल में अलग, यहाँ पे अलग होता है क्या? सर मुझे नहीं समझ आया y क्यों 2 है. ये क्या फैक्टर ट्री मालूम है? फैक्टर ट्री कैसे बनता है बेटा? हाँ सर. बस फैक्टर ट्री है. ओ 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 6 48. ठीक है सर. करेक्ट. ये प्राइम फैक्टर ट्री है. Find the estimated difference between this and this when each number is rounded to nearest thousand place. Very good. क्या कर सकते हो? Sir, first we'll round these two numbers to the nearest thousands place and then subtract it. तो क्या होएगा? So it'll be 7. It'll be 7 9 0. ओके, इसमें आंसर चेक करो. देखो तुमको ट्रिक सिखाता हूँ मैं, राइट? Sir, I know. अब बताओ फिर. The 7 9 0 0 0 0 7 9 0 0. फिर And then 4 4 तुमने बताया 0 तो मैं यहाँ 0 लिख. 0 0 7 9. 7 9 0 0 one more 0. कितना जीरो करो? 4 0. तो 4 जीरो तो किया है मैंने. हाँ तो फिर अभी 4 4 0 0 और 4 0 0. 4 4 0 0. I mean और 0 जीरो उसके भी 0 है. क्यों? ये तो करेक्ट है, क्या प्रॉब्लम है? हाँ सॉरी सर. ठीक है. अब मैं तुमको सॉरी जो सर. बताना चाहता था, I मैं miss it. बताना चाहता था तुमको कि यू शुड सी दिस टू नंबर, दैट्स इट. बिकॉज Yes. आपके 3 जीरो से लास्ट के 2 नंबर देखो यहाँ पे. एंड इफ यू सी ओनली दिस फ्रेंड ऑफ 10, राइट, लास्ट फ्रॉम 10. ओके. एक ही आंसर है तुम्हारे पास, तुमको सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं है. यू Sir. नीड नॉट सब्ट्रैक्ट एनीथिंग बिकॉज फोर्थ फिगर पे 10,000 फिगर पे only there is one number. I don't have to check. This is what I'm saying. Don't actually calculate. You don't have to do it. 1 1 4 0 0 0. ये तुम्हारा आंसर आ गया. तुमको आगे की चेक करने की जरूरत ही नहीं है. क्लियर? सो दिस वाज आई वाज टेलिंग यू. लेकिन तुमको तो राउंडिंग करनी है. मैं राउंडिंग करके सिर्फ ये 2 नंबर देखा. दिस हैज बिकम 90 एंड दिस हैज बिकम 36. करेक्ट. मेरा नाम खत्म हो गया वहां पे. मेरा काम, मेरे को और कुछ देखना ही नहीं है बिकॉज ऑल थ्री आर गोइंग टू बी जीरो. दैट्स इट. मेरे को खाली ये देखना है. दिस हैज बिकम 6 एंड दिस हैज बिकम 0, सो इट विल बिकम 90. 90 माइनस 36 करो, मेरा काम हो गया. एंड दैट टू इवन आई डोंट हैव टू डू. आई हैव टू डू दिस यूनिट प्लेस. दैट्स इट, डन.
In which of the following options the sum is given integer is less than the zero? बहुत इजी है, बहुत इजी है. A and B. Sir, we'll go Both A option and one. B. हाँ, A. नहीं, हाँ, नहीं, B B. and C. B and C. B. 20. Only यहाँ पे B. 700 है बेटा, ये 880 है. अच्छा, sorry. यहाँ 750 है, राइट, एंड दिस इज 815. यही नेगेटिव है. यहाँ पे 171 और 120 और 23. कुछ करना ही नहीं, एस्टिमेशन ही करो, खत्म. Which of the following figure have more than two line of symmetry? Sir, सिर्फ S. सिर्फ एस. वेरी गुड बॉय. ठीक है, चलो देखो कितना इजी हो गया. ठीक है, डायरेक्शन टू गिव द टेबल शोज इज इट. अच्छा, यहाँ पे चेक कर लो कि कितने पीपल है, राइट. क्विकली राइट डाउन 1 2 3 4 5. तो यहाँ पे कितने हो गए? 25. 25. वेदर यू रिक्वायर और डोंट रिक्वायर, राइट. 12. Next is 12. 12. नेक्स्ट. 1, 2, 3, 4. 28. नहीं, 27. हाँ सर 27 है. नहीं, 28. Sorry. 28. उसका पहले वाला नहीं दिखा. सर हाँ, ठीक है, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्यों? ठीक है. 17. 17. 17. 10. 10. 4. 19. 19. 11. 11. करेक्ट. तो ये मैंने सबका यहाँ पे आई ओपन दिस एवरीथिंग. करेक्ट. चलो फिर नीचे आगे रीड करो. How many more people visited the library on Monday, Wednesday? Sir, देखना है sir. एक सेकंड है बेटा, मैं थोड़ा इसको जरा एडजस्ट कर लेता हूँ पहले यहाँ पर, राइट. How many more people? So you write this in front of all this, so at least you know what all things are going to be used, right? Yes, sir. How many people visit library on the Monday, Wednesday, Thursday all together than the Saturday and Sunday together, right? Monday कितना है? 25. Wednesday 28. 28. 53. 53. Thursday 60. I mean, no, 70. 70. 70. Saturday Sunday कितने हैं? 70. Sorry, sir. 30. 30. Sir, 20 is the answer. अच्छा Huh? है. टोटल 70 माइनस 30 है ना. Sorry, sir. Sorry. Find the fraction of a number of people who visited on Tuesday to the total number of who visited on the whole week. कितने यहाँ पे? Now how do you total it? चलो मेरे को टोटल कैसे करोगे? Sir, just 30, add. 40, 40 and then this is 40, 80, 80 and how much is this? 105. हाँ, 105. 105. 17 भी तो है. 125. 120. करेक्ट. हाँ sir. पक्का है? चेक करो. गलत आंसर है. 40 plus 30, 70. 105 प्लस 17 कितना होता है? 175. 105 plus 17. Sir, total करो, 123. total करो. 123. अरे टोटल करो मेरी जान. 175. 175. 123. अरे टोटल करो मेरी जान. 122. और शर्म करो, तुमको इतना भी नहीं आ रहा है. वन 122 टोटल है. कितना है? मैंने बोला 105 प्लस कितना आता है, राइट? आई आस्क यू ऑल्सो, राइट? सर मैंने बोला 122. हाँ, तो फिर आंसर कहाँ गया तूने? फिर आंसर फ्रैक्शन कहाँ बोला तूने? फ्रैक्शन बोला क्या?
सबसे ये क्या है 12 डिवाइड बाय 122, सो इट विल हैपन 12 डिवाइड बाय दिस 6 डिवाइड बाय 61, करेक्ट। चलो नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर। वाह करते हैं तो चलो ये तो बहुत ही दादी सिंपल है, वाह करते दिस रहते इज हैं वेरी आप सिंपल। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्या हो गया मिश्का, कुछ नहीं कौन परेशान कर रहा दादी आई थी है? ओके ठीक है, चलो। सो दिस विल बी, I'll use this shape here, right? Make a rectangles, right? If you want to find this, make a rectangle. This is one rectangle, this second rectangle. मैं बना रहा हूँ, तुम लोग अपना कैलकुलेट करो अपने हिसाब से, चलो यू कैलकुलेट योर वे। Please make sure that you make only horizontal rectangles or vertical. Don't make both. Don't create a confusion, right? Yes, sir. 21 Either create a horizontal or you create vertical. Don't create both. Hmm. So this has become what? So 10. 10. This has become 7. ये 7 इंटू ऊपर वाला 1 है, 9 है, राइट इधर। हाँ ये कितना होगा, व्हाट इज दिस, 1 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, 6, दिस विल बी 5 एंड 1, वेरी सिंपल गिवन। 9 एंड कितना है ऊपर, यहाँ पे 9 है, 1 है, 1 है, 7 है, एंड दिस इज ऑल्सो 1, राइट, सो इट विल बी 1 ऑल्सो, करेक्ट। हाँ सर। ये 7 सेंटीमीटर है, ऊपर एक 1 सेंटीमीटर है, तो ये ऑब्वियसली 1 सेंटीमीटर होगा, राइट। 37, sir. हम्म 37. हाँ सर 37 ही है। पहले कितना बोला था? मैंने कुछ नहीं बोला सर। अच्छा अच्छा बेटा, बुढ़ा होगा इसका मतलब नहीं कि मेरे को ये नहीं रहता है। सर पर मैंने नहीं आई कैन बोला। हियर वेरी क्लियरली। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग शेडेड फ्रैक्शन मॉडल इज शोन बिलो, मॉडल 1, मॉडल 2। ओके, P is shaded fraction of model 1 and Q is a shaded portion of model 2. Very good. C. हाँ C. ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम उसको ज्यादा करो या कम करो, करेक्ट। यू टू चेक द। सर कैसे? I I didn't understand. वो ये फ्रैक्शन ऊपर वाला कितना फ्रैक्शन है, अच्छा 3/6. करेक्ट। दोनों का सेम है, राइट। हाँ सर। तो उसमें क्या आएगा, ऊपर दिस विल बी 3/7/10, राइट। ऊपर क्या हो गया, 7/10, एंड दिस विल बी 1/2, राइट। क्लियर। हाँ। सॉरी, 25 सॉल्व करो, 25, 29 एंड 30। आई एम ब्रिंगिंग वाटर।
चलो, गॉट इट। वॉशरूम जाओ। हाँ, फिर 20th वाला कौन समझाएगा? हु विल सॉल्व 25th वाला? सर वॉशरूम को जाओ। हाँ, जाओ। ओके, हु विल सॉल्व 25th? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द स्मॉलेस्ट एंगल फॉर्म बाय द हैंड्स ऑफ द क्लॉक? सर कैन आई से हाँ, Can बोलो I बेटा। also go to the washroom? यस, यस, So can I also use the bathroom? यस। Sir, can I also use the अरे bathroom? जाओ ना, तो पहले मैं जब पानी लेने गया था उस टाइम पे जाके आते ना। डबल टाइम वेस्ट। चलो, बोलो। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट। करेक्ट, बिकॉज दिस हैज एग्जैक्ट 4, दिस इज एंड मोर देन 4। ये तो चलो बाय द ये, राइट। चलो, एंड इट इज नन। द आवर 29 हैंड इज अ लिटिल आफ्टर आफ्टर 11। दिस, यस। ये दोनों में थोड़ा सा टफ कंपटीशन था, लेकिन ये जीत जाता है, राइट, बिकॉज उसका छोटा एंगल है। A wire length is 180 bent to form an rectangle. If the breadth of the rectangle is half of the length of the rectangle, find the area of a rectangle. Very good. Quick. How will do it? Very simple. Very easy. Come on, fast. Tell me. Sir, perimeter. पहले साइड बताओ। What will the side of the rectangle will be? Very easy यार, it is। क्यों समझ में नहीं आ सर रहा सर तुमको? सर आई अंडरस्टूड। बहुत सिंपल है, डायरेक्ट आंसर मैं कर सकता हूँ सर यहाँ पे। आई अंडरस्टूड कैन अरे आई आंसर बता फिर। 180 divided by. Yeah. सॉरी। Sir, the length is 60 meter and the breadth is 30 meter. कैसे किया? Sir, because we know that 30 is half of 60, and when we do 60 into 2, into 2 it comes 180. No, sorry. Not 90 into 2 is 180. अगर यहाँ पे कोई भी और नंबर डाल दो तो कैसे सॉल्व करेंगे? I'll put any number here. Then we'll solve. I can try, sir. 144 लिख दिया अभी। Um, अभी सॉल्व। sir, wait. Sixteen nines are 140. Anybody can do quickly. Huh? Anybody can do this quickly. देवांश। सर मुझे 29th क्वेश्चन समझ नहीं आया। बेटा, तेरा तो अभी कल ही, आज ही एग्जाम हुआ ना, कल ही एग्जाम हो रहा है। हाँ तेरी सर। एरिया पेरीमीटर था ना उसमें? सर एरिया आया था, पेरीमीटर है ना, क्यों? रेक्टेंगुलर पेरीमीटर भी तो था। पेरीमीटर नहीं आया था। अरे क्या नहीं है? पेरीमीटर हो नहीं सकता ना हो। सर एरिया के साथ पेरीमीटर हमेशा होता है। अरे तू तेरा काम करना है, तेरे को आंसर दे मेरे को। हाँ। उसके स्कूल में क्या है नहीं है तेरे को कैसे मालूम? तू बता, आंसर बता, कैसे करेगा?
मैंने अलजेब्रा सीखा तुमको, राइट? हाँ। मैंने अलजेब्रा सीखा, राइट? हम्म। तो क्या होगा? लेंथ एंड ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स, लेंथ इज इक्वल टू 2x, हाँ। करेक्ट? Yes, sir. और ब्रेथ क्या होता है? अपना पेरीमीटर क्या है? 2 × x + 2x इज इक्वल टू 144। हाँ। और ये यानी 180 ले लो यहाँ पे, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा? 6x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 30, दैट मीन्स योर ब्रेथ इज 30 एंड दिस इज 60, राइट? अगर 144 हुआ तो भी तुम इसको डिवाइड करो. इफ इट इज 144 डिवाइड बाय 6, व्हाट यू गेट? 9. Choose the 12, नहीं, sorry. 9. 24, right? 24 and 48, correct? Now how did I mark? That is why I'm saying 30 into 60 will be. So what I did? You understood? Use algebra. Algebra सिखाया ना मैंने तुम लोगों को. सर, पर मुझे 144 का कैसे करना है वो नहीं समझा. सेम चीज यूज किया बेटा मैंने. आई यूज द सेम थिंग, राइट? इंस्टेड ऑफ 180 यहाँ पे क्या करा मैंने? 144 लिख दिया. So this has become what? 6x is equal to 144. X is equal to 24. खत्म. ओ हाँ. इसके लिए तो मैंने अलग नंबर दिया ना तुमको, जो राउंडिंग नंबर नहीं है, राइट? हम्म. And 2x is equal to 60 meter. So area equal to 30 into 60 is equal to 1800 meters square. Easy? चलो 38. सर सी है सी. सी है, सी कैसे? बता मेरे को, सॉल्व करके बता. सर मैंने कैलकुलेट नहीं किया. आई जस्ट सॉ हाउ मेनी नंबर्स आर बिगर. कैसे किया बता. Like as for 95.23 हम्म is smaller than 350, 350.91. Then I did uh, 220.80 is bigger than 18.31. ए बाप रे. हेलो, Sir, D है. बहुत दिमाग लगा रहा है तू, बहुत दिमाग लगा रहा है, राइट? यहाँ देख, दिस बोथ विल बिकम 95 प्लस 220 माइनस 10, राइट? हाँ इसको सर. कितना हो गया ये? What is this? 210 plus 90, which is 305, right? 305. 305. Approximately it is 305, right? It is approximate, right? हाँ sir. Correct. दूसरा क्या होएगा? And then, sir, well, 350 is already Plus 20 bigger. minus 60, right? कितना होगा ये? 100 to 310. Sir, 390. 390. Correct? Sorry, 310, sorry. हो गया? हाँ sir. दिमाग Yes, लगाने sir. की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है? हाँ sir. काफी फर्क है. और 350 is already bigger. डेसिमल को एंटरटेन मत करो, राइट? हाँ sir. समझ में आया? तो ये डेसिमल ऐसे में बोलने की क्या जरूरत है? इससे बेटा तू बोलेगा तब तक तो ये पेपर खत्म हो जाएगा तेरा. मैंने एस्टिमेट से सिखाया क्यों तुम लोगों को, राइट? चलो नेक्स्ट, डिसेंडिंग ऑर्डर. चलो Sir, C. नाउ डिसेंडिंग ऑर्डर हुआ. सबसे पहले तो तुम्हारा ये चीज आउट हो गया, राइट? फर्स्ट थिंग इज दिस इज आउट. So because nothing can start with minuses. करेक्ट. नहीं माइनस में चलो, लेकिन उसमें पॉजिटिव है ना, तो ये दो तो ऐसे भी आउट हो गया, राइट? Yeah. C है ना. अरे रुक जा मेरी जान, रुक जा. ओ जाने जाना, रुक जा. Sir, it can't be D because minus 11 is bigger than minus 20 and minus 5 is ठीक bigger है, than. ओके. तो अभी आ गया, इतना ज्यादा रीजन देने की जरूरत नहीं है, हो गया, राइट? Yes, sir. This should be done in 30 seconds. Yeah. What is the product of common factor of what is the product of all common factors of 32 and 48? Very good. Common factor क्या क्या है? Sir, 2,
4 2 4 8 Hmm. हाँ sir 16. हाँ 2 4 6 8 16 हाँ 6 2 4 Sir, 8 2, 4, 8, 16. 2 4 4 8 8 16 16 कितना होगा? 1024. कैसे किया? Sir, I did multiplication. मल्टीप्लिकेशन तो करना ही नहीं तुमको, राइट? सिक्सटीन इंटू टू 34, 36, 32 एंड 8 इंटू 4 32, राइट? 32 का स्क्वायर इजी है, 1024 आता है. हाँ sir Yes. Suppose you don't know to multiply, what will you do? Chalo, come on. I don't know to multiply. I don't know 32 square. How will I do it? so just do 32 times 32 Very good. वो नहीं करना ना बेटा मेरे को. हाँ I don't want to do this. How will I do it? sir I don't know Anybody? Nobody knows. sir you will see two the ending unit is 2 so then वो you तो will सब में 4 है. 4 4 4 क्या करेगा? sir तो C9 होगा और फिर 30 times सी 30 कैसे नहीं होगा? सी कैसे? हाँ सी तो नहीं होगा. ठीक है फिर. 30 times 30 करोगे and then you'll get the answer 9 करेक्ट. ओके. चलो एक बहुत अच्छी चीज है, राइट? वेरी नाइस. लेकिन मैं तुमको ऑप्शन चेंज करता हूँ यहाँ पे, राइट? वेरी गुड. ही हैज करेक्टली पॉइंटेड आउट. ओके. यू डू एंड डिजिट and estimation both, right? So and digit is 4, and digit is 4, and estimation is greater than 900, right? yeah sir Only one option, correct? yes sir C, D, correct. लेकिन मैं तुमको ऑप्शन दे रहा हूं यहाँ पे. आई मेक इट लिटिल टफ फॉर यू, राइट? चलेगा? हाँ sir बताओ, बिकॉज आई वांट टू टीच यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? 1024, 1034, 1044, 1054 or 1014. चलो, I am giving all these numbers which are near to 10. लिखो 1014, 1024, 1034, 1044. Tell me the answer now. तो क्या था नंबर? Options are 1014, 1024, 1034, 1044. अब तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है एस्टिमेशन करने का, राइट? बिकॉज ऑल आर ग्रेटर देन. अब क्या करोगे? sir 32 का ना सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन. आई एम चेंजिंग द आंसर. अब तूने बताया वो तो क्वेश्चन 4 हो गया, राइट? हाँ sir एंड डिजिट 4 हो गया. sir it will be B the question B बेटा आंसर कैसे लाया वो चाहिए, मल्टीप्लिकेशन किए बिना. विदाउट मल्टीप्लाइंग हाउ यू कैन गेट द आंसर? एनीवन? Sir, I don't know. चलो, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डिजिटल सम. एनीबॉडी नोज व्हाट इज डिजिटल सम? Yes. No. डिजिट सम, एनीबॉडी हर्ड ऑफ डिजिट सम? Yes. करेक्ट. नाउ व्हाट इज डिजिट सम बेटा, टेल मी. Sir, when we have a number, Hmm. we add the digits. मतलब Okay. it. So I want to do 32 multiplied by 32 and you will get some answer, right? yes Then Then three. When we add these two numbers, 3 plus 2, hmm, it becomes 5, and it is 5. Next one is also 5. okay. Then
Then 5 5s are 25. Good. So what do you have? Sorry? You got 5 into 5, you got 25. Then what? Well, I don't know anything. Then what? Then I don't know. Correct. Now up till ठीक है. Now, what is 25 का digit sum क्या है? 7. Sir, so I didn't hear you. क्या हो गया बेटा? Sir, आपने क्या बोला अभी? Okay. Now, what is digit sum? For example, if I want to find, चलो I'll अभी explain करता हूँ मैं. I'll explain. I give very 4 number 8 7 2 9 3 multiply by 6 8 7. Correct? I am giving you this number, right? हाँ sir. चलो मैं भी क्या कर रहा हूँ? I am giving you some number. मैं ऑप्शन दे रहा हूँ. I am giving you A B C D 4 ऑप्शन, right? A B C and D. You have to tell me the right answer, right? हाँ sir. You can't use the calculator. Correct है ना? हाँ sir. I am giving you 3 answers. Okay. 3 3 4 7 7 1 2 9 1. 3 3 4 7 7 0 2 9 1. 3 3 4 7 6 9 2 9 1. 3 3 4 7 7 2 2 9 1. It is 9-digit answer. You have to solve it in a 1 minute or 1.5 minutes, 2 minutes. Can you solve? Yes. How? How can you solve? Calculation. 1 minute में can you multiply 6 digit by 1 digit? हाँ? बेटा अगर कैलकुलेटर भी यूज करूंगा तो मेरे को 1 मिनट 30 सेकंड लगेगा, राइट? हाँ sir. Now what I want to teach you here, see everybody listening here. Yes sir. Now सर मुझे क्वेश्चन ये 27 समझ नहीं आ रहा. कौन सा वाला? क्या समझ नहीं आ रहा 27 बेटा? क्या समझ नहीं आ रहा बेटा? पर हमने कैसे मैं किया ही नहीं अब तक. सॉल्व तुमको करना है, मेरे को थोड़ी सर करना है. आपने सर आपने 27 सॉल्व किया ना? क्वेश्चन क्या पूछा है, समझ में आया? नहीं सर. व्हाट क्वेश्चन डिड आई आस्क यू, समझ में आया? नहीं सर. क्वेश्चन ही समझ में आया? सर मैंने क्वेश्चन सुना नहीं. कैन यू सी द क्वेश्चन नाउ? यस सर. इज इट क्लियरली विजिबल? यस सर. ये क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर. दिस इज अ क्वेश्चन 48729 multiplied by 687, right? यस सर. And these are the 4 questions you have to find the answer for this. In how many minutes sir? 30 seconds. 1 30 minute. seconds. 1 minute ले ले. Can you solve this? No No sir. sir. Not Okay, in चलो one मैं बताता हूँ. Now what is the digital sum? What is the digital sum rule? The digit sum of question will be always equal to digit sum of answer. Correct? What is the logic? Digit sum of question will be always equal to digit sum of answer, right? Now digit sum का एक है when you have a sum of 9, जैसे 9 हो गया, right? ये 9 हो गया, इसको उड़ा दो. Correct? Secondly क्या गया? 4 3 8 15, इसका digit sum हो गया 6 multiply by इसका digit sum कितना हो गया? 7 3 are 21, so it will become 3. Right? What is the digit sum of this? 6 3 are 18. 3. Digit sum is 9. तो आंसर का digit sum क्या होगा? 9. Clear? Now look at this very simple number, right? If you see this, only this digit is different. Mostly, right? ये दोनों digit में फर्क है, right? और किधर फर्क नहीं है. Is it clear? हाँ sir. Now you take this or you take out the number of this, say 7 3 10 10 24. Correct? 24 and 3
27 and 9. इसका डिजिट सम कितना हो गया? व्हाट इज डिजिट सम फॉर दिस? इसका डिजिट सम हो गया 1. ओके, टेक दिस डिजिट सम. 3 3 6 10 17. ये 9 9 कैंसिल करो, ये 9 9 कैंसिल करो. 17 हो गया. डिजिट सम क्या हो गया इसका? 8. करेक्ट? यस और नो? इसका डिजिट सम करो. 10 and 14 24. 24 and 3 27. तो ये कैंसिल हो गया. 9. इसका डिजिट सम हो गया 2. इसका डिजिट सम हो गया 9. चेक करो. तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड. कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कुछ भी. अगर तेरे को मल्टीप्लिकेशन से बहुत इजी है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. तेरे को टोटल करने को आता है? सर मैंने अंडरस्टैंड नहीं किया. वेरी गुड, कराता हूं मैं कराता हूं. सर मैं भी अंडरस्टैंड. ओके ओके, अंडरस्टैंड. What is digit sum? What is the digit sum? Can you know what is digit sum? 35, 36. You know what is digit sum? Yes. अच्छा सर You उसका have to 98. reduce the number. This is a reduced number, right? अगर मेरे को इसका reduce करना है 4 8 7 2 9 3, correct? हाँ सर. So what will happen? It is 18. Yeah. Then 2 9 is 18, 21, 29 and 33, right? 33 का क्या होगा? 3 plus 3 6, correct? Yeah. Okay. What is 6 8 7 का क्या होगा? It is 8 6 7 7 6 8 7. It is 21. 20 will become 3, right? हाँ सर. Yes. तो इसका डिल सम क्या होगा? 6. इसका डिल सम क्या? 3. It is multiplication. So when I multiply this, what will happen? It will become 18, right? 18. सीधा Yes sir. 18. 18 का डिल सम कितना हो गया? 9. क्लियर है? Yes sir. Very good. अब now we have got the numbers here below. What are the numbers? Right? Now Sir. digit sum का एक rule है. When you have the digit sum of 9 or total 9, the digit sum remain will not change. क्या होगा? Digit sum change नहीं होगा. क्या नहीं होगा? Change. Okay. For example, एक नंबर ले ले. 48. इसका digit sum कितना है? सर 4 plus 8 12 3 3. 3. इसमें 9 ऐड कर कितना आएगा? हाँ 9 8. 9 ऐड करो, कितना होगा डिजिट सम? इसका 9 ऐड करो. 48 प्लस 9 कितना होता है? सर 57. हो गया. डिजिट सम कितना? 3. इसमें 9 ऐड करो, कितना होगा? 12 3. 60. इसमें 9 माइनस करो, कितना होगा? इसमें 9 माइनस करो, कितना होगा? 3 इसमें 9 ऐड करो, कितना होगा? 3. 60. अरे ऐड तो कर मेरी जान पहले. सर 75 3 इसमें ऐड करो, कितना होगा? 83 करेक्ट. तो तुम 9 ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, डिजिट सम में कोई फर्क नहीं पड़ता. करेक्ट? हाँ सर. तो मैंने क्या किया? व्हाट आई एम डूइंग, आई एम कटिंग दिस 9 कट, 7 and 2 कट, अगेन 7 and 2 कट. करेक्ट. ये कितना बच गया? 10. 10 इज इक्वल टू 1 हो गया. हाँ सर. ओके, टेक अनदर नंबर. 3 3 4 7 6 9 2 9 1. 9 9 कट, 7 and 2 कट, 6 and 3 कट. कितना बच गया? 3 4 and 1. डिजिट कितना हो गया? 8. 8. थर्ड वन 3 3 4 7 7 0 2 9 1. करेक्ट. 9 कट, 7 and 2 कट. देन और कुछ कट हो रहा है? नहीं. चेक करो, होगा? नहीं हो रहा है? नहीं. ठीक है. तो कितना हो गया? 10 और 17 और 18. कितना हो गया? 18 मतलब सर 9. 9. इसको चेक करो. 3 3 4 7 7 2 2 9 1. 9 कट, 7 and 2 कट, 7 and 2 कट. Then how much is this? 10 plus 1 11. 11 is equal to 2. हो गया तुम्हारा डिल सम? हाँ क्लियर हो गया? Yes. Now we'll take it something of a 32 into 32. Correct? These are the advanced tricks which I am teaching you. 32 into 32. Correct? What is that? 5 into 5 will be 25. 25 will be 7. This is your digit sum, right? हाँ. हाँ सर. Now what option I have given? I give you option of 1 0 1 4 1 0 2 4 1 0 3 4 1 0 4 4, right?
हाँ सर। इसका डिजिट सम क्या होएगा? 6, इसका डिजिट सम 7, Seven. इसका 8, इसका 9, करेक्ट? हाँ सर। तो आंसर क्या होगा? 7. इजी है. हाँ सर। So it is going to be useful for very big numbers, correct? Yes, sir. Sometimes you can, if you don't know, instead of multiplying, you can use this also, and it is very, very effective trick. But good that I like the way Prayan solved. He has used the logic to make it logical, right? हाँ सर। Very good. ठीक है. So can I go in quarter? Yes, yes, बेटा. Okay, clear? हाँ सर। So digit sum समझ में आ गया? हाँ सर। Very nice. ठीक है. प्रयान तू इसमें एडेड है क्या? क्या? यू आर एडेड इन दिस. चलो मैं यहाँ ऐड नहीं करता हूँ, तुम्हारा कंफ्यूजन होगा. सो आई एम सेंडिंग यू दिस ऑन योर ग्रुप ऑल्सो, राइट? Oh sir, you can add me. It's fine. अरे कंफ्यूजन होगा, तू ये आ नहीं पाएगा आधे टाइम पे. ऑल्दो आई विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग, बट लेट इट बी फॉर टिल दिसंबर, कीप इट सेपरेट. नहीं तो तेरा कंफ्यूजन होगा, सर कहाँ दिया था, क्या दिया था, गड़बड़ होगा सब, ठीक है सर। है ना? ठीक है, चलो. क्लियर? Yes, sir. समझ, मजा आया? हाँ सर। अच्छा लगा Yes, sir. ट्रिक? हाँ Yes, सर। sir. So there are so many such tricks what you can use to solve the things very quickly, correct? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया? क्लियर? हाँ सर। सो वी कैन यूज द डील सम ऑल्सो. तो यहाँ पे कैन यूज डीएस ऑल्सो. मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ, राइट? एस्टिमेशन, ईएसटी एस्टिमेशन, ईडी इज एंड डिजिट, राइट? तो मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ, मेरे स्टूडेंट को सबको समझ में आ जाता है, राइट? यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द लीस्ट वैल्यू. अब इसमें सोचना पड़ेगा, राइट? हाँ सर, मुझे रोमन न्यूमेरल नहीं आता। नहीं आता है तो सोचना पड़ेगा बेटा डार्लिंग. एटलीस्ट इसमें एक क्वेश्चन तो रोमन न्यूमरल पे आता है. चलो इसको सोचना पड़ेगा, तो विल डू इट लेटर ऑन, अभी नहीं करेंगे, राइट? यहाँ Yes, पे sir. इफ एक्स इज अ ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर that can form by using this number, using each digit at least 1, 2, 3, 4, 5, then which of the following options shows the number name of x inter-initialization system? उससे क्या बोला है? x is a 6 digit greatest 6 digit number that can be formed using the digit 3, 5, 0, 2, 9, using each digit at least once, करेक्ट? तो नंबर कौन सा बनेगा? व्हाट विल नंबर? सर 90। वेरी गुड, शाबाश मेरी जान. ग्रेटेस्ट नंबर बनाने का है. हाँ सर 9। 90 कहां से आएगा? 99. हाँ सॉरी सर। 5320, करेक्ट? हाँ सर। इसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखने का है. सर 995,320. लैक तो आएगा नहीं, बिकॉज इट इज से इंटरनेशनल सिस्टम, राइट? तो लैक इज ओवर Last answer. 995,300. 900 9 लैक्स आ गया. 999,500. यहाँ पे 500 आ गया, ये गलत है, राइट? हाँ. 32. तो आंसर इज बी बी. सर। रोमन नंबर नहीं आ रहा है तो क्या करूं डार्लिंग? रोमन नंबर का नहीं सॉल्व करूं? हाउ मेनी मोर पेयर्स ऑफ द इंटरसेक्टिंग लाइंस देन द पैरेलल लाइंस आर देयर इन द गिवन फिगर? वेरी गुड. हाउ मेनी क्या बोल रहा है? 3 सर, 3। अरे मेरी जान रुक जा, अभी बहुत कांड है इसके अंदर, राइट? इसे क्या था? हाउ मेनी मोर pairs of intersecting line then the parallel lines are there in the figure. पैरल लाइन कितनी है? एक, दो, सर 3 है। 3 है. और इंटरसेक्टिंग कितनी है? 6। अच्छा, कैसे? 5, 5. ये एक लाइन है ना, एक लाइन किससे इंटरसेक्ट है? 1, 2, 3, 4, 5 में तो यही कनेक्ट कर रही है, राइट? ओ ओ फिर क्या था? ये 6,
7, 8, 9, 10, 11, करेक्ट? तो कितनी ज्यादा है? 5. अच्छा, 11 minus 3 parallel lines, right? Oh, तो 8. कैलकुलेशन नहीं चाहिए बेटा, मेरे को समझ में आना चाहिए कितना है, राइट? हाउ विल यू हाँ. पुट दिस? हाउ विल यू मार्क दिस पॉइंट्स, राइट? दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. हाउ डू यू मार्क दिस पॉइंट्स? ये जितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है ना, वहां पे मार्क करो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, राइट? हाँ सर. पैरेलल कितना होगा? एक सर तो पैरेलल. पैरेलल लाइंस तो 4 होने चाहिए ना? सही जवाब. कौन बोला ये? शाबाश. सर शिरीन. वेरी गुड. पैरेलल लाइन 4 होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि एक ये पैरेलल लाइन है, मैं मार्क करता हूं ब्लू से. दिस इज वन पैरेलल लाइन. दिस इज वन सर यार, रेड कहाँ जा गया? ओके. दिस इज वन पैरेलल लाइन. Yes, sir. दिस इज अनदर पैरेलल लाइन. Yes. दिस इज अनदर पैरेलल लाइन. चौथी लाइन किधर है शिरीन? सर फर्स्ट एंड थर्ड वाला. सही जवाब. गुड बॉय, गुड गर्ल, राइट? So it is one parallel line, this is second parallel line, this is third parallel line, this is fourth parallel line, right? तो आंसर क्या आएगा? 7. बस. ये बाकी के जो ऐसे खाली देख रहे हैं ना, उनका कुछ भला नहीं होने वाला, राइट? दोज हु आर आंसरिंग, वही इसका अटेंशन दे रहे हैं, बाकी अदरवाइज किसी का आंसर नहीं आ रहा, राइट? चलो नेक्स्ट. ओके, नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द नंबर? 3000, 3900, 3900. 54. 59. 59. वेरी गुड. चलो ठीक है, ध्यान तो है सबका. खाली एक शिरीन है जिसका ध्यान दे रही है, बाकी कोई नहीं ध्यान दे रहा. नेक्स्ट. और मैं कौन मैं है? रोमन आंसर क्या मैं है क्या? 700. नहीं, तेरे को रोमन नंबर नहीं आता, तूने बता दिया ना बेटा. दैट इज ओके. क्या हो गया फिर? 2000. 500. करेक्ट. तो अप्रोक्सीमेटली मैं इसको अप्रोक्सीमेटली लेता हूँ, राइट? सर 1200. पर मैं रोमन नंबर मुझे नहीं समझते अच्छे से. किसको? शिरीन को. तो क्या करूं मैं बेटा? अब रोमन नंबर या तुम्हारा 4th ग्रेड का है, मैं तुमको 6th ग्रेड में पढ़ाऊं? पता मेरे को. वो भी एक क्वेश्चन आता है तुम्हारा, राइट? सो इट इज सर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ बड़े नंबर्स नो में. प्रॉब्लम. 2465 माइनस 1200. But it's plus. 1244, right? So approximately Sir? approximately कितना होगा ये? हम्म. 700, right? Next. 899. 899 plus प्लस 447. 447. approximately कितना हो गया? Sir, 1300. ये 2000. 2709 minus 2709 minus 2403. इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत है? नहीं, सब पता नहीं. नहीं है. 1000. एक ही आंसर है ना थोड़ा तुम्हारा सा बेटा. लगाना पड़ेगा. क्यों दिमाग लगाना पड़ेगा? लीस्ट नंबर पूछा ना. हाँ. सर मुझे ये हाँ, याद least नहीं number. है. अच्छा. तो क्या करूं बेटा? अब तुमको मैं 4th ग्रेड का पढ़ाऊं? ये पूरा रोमन नंबर तो मैं रिवाइज नहीं कर सकता ना. और रोमन नंबर पर का रोमन नंबर में कर भी रिवाइज बेटा, लेकिन उसका और मेरे सर एक सेकंड प्लीज मुझे रीड करने दो. 2700. सर मेरे स्कूल में ओके सर.
ओके, क्योंकि अपने को क्या करना, लीस्ट नंबर करना, राइट? सो हाँ वी डोंट हैव टू एक्चुअली सबट्रैक्ट, राइट? अप्रोक्सीमेटली हमने ले लिया, हमारा काम खत्म हो गया, राइट? हम्म ठीक है, इसमें टाइम सिर्फ इतने को लगता है तुमको कन्वर्ट करने पर रोमन नंबर में, दैट इज द ओनली टाइम टेकिंग प्रोसेस, दैट इज व्हाई आई डिड नॉट अटेम्प्ट दिस फर्स्ट, राइट? हाँ ठीक है, दैट इज व्हाट शुड नो कि which one the select the correct option. 5 kg 500 grams plus 500 grams 1500 grams is 7 kg Wrong, 500 sir, ये grams, wrong correct? है. wrong है, right? this is wrong. ठीक है, बिकॉज ये कितना हो गया, 7000 Like होगा, राइट? 7 kg हो 6 जाएगा। kg. यहाँ 7. पे क्या, 300 ml इज इक्वल टू डेसीलीटर। तो मैंने कभी पढ़ा नहीं है डेसीलीटर। डेसीलीटर, यार ये भी तुम्हारा ग्रेड 4 फेक है, मैं पढ़ा रहा हूँ यार अभी। सर पर हमें स्कूल में ही कभी आया ही नहीं चलो मैं डेसीलीटर। कराऊंगा, लिख ले तेरी बुक में, और मेरे को बता सर, मेरे को यूनिट कन्वर्जन बताओ डेसीलीटर और सेंटीलीटर का। ओके, आई डू इट, नो प्रॉब्लम, मेरे लिए एक दिन लगेगा करने के लिए। ठीक है, नाउ यहाँ पे डेसीलीटर कहाँ पे जाता है, बेसिक के बाद जाता है डेसीलीटर, राइट? सो दिस दिस विल बिकम 9 किलोलीटर विल बिकम व्हाट, 90,000 डेसीलीटर बन जाएगा, राइट? प्लस 300 लीटर्स को बन जाएगा 3000 डेसीलीटर, राइट? तो विच विल बिकम व्हाट, 93,000 93,000 डेसीलीटर, रॉन्ग ऑप्शन। करेक्ट है? रॉन्ग है। रॉन्ग है, करेक्ट। यहाँ पे आ जाएगा, दिस विल बी 7 kg, राइट? 550 दिस विल बी मीटर 7 kg। ओके, अब ये आएगा 550 मीटर मोर देन 5 हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर क्या आएगा, हेक्टोमीटर इज इक्वल टू, नाउ मीटर से हेक्टोमीटर में जाने के लिए कितना पड़ेगा, 2 पड़ेगा पीछे, राइट? सर आप मुझे सबके वैल्यूज बता दो, मैं नहीं, सारा कर अभी अभी लूंगी। अभी तुम रुक जा, तेरे को अभी मैं नहीं बता सकता हूँ, राइट? शांति रख। 5.5 हेक्टोमीटर आ जाएगा, राइट? सो दिस विल बी, सम विल बी 10.5 हेक्टोमीटर, करेक्ट? तो यहाँ पे 5 से हेक्टोमीटर से करेगा तो क्या आएगा, 10 हेक्टोमीटर हम्म, एंड 50 मीटर, करेक्ट? ये करेक्ट आंसर है तुम्हारा। हेक्टो के बाद डेका, डेका के बाद डेसी, राइट? सो 0.5 का जब 100 से मल्टीप्लाई करेगी तो 50 आएगा, राइट? ये थोड़ा सिखाऊंगा तुमको बाद में, ठीक है? मैं अभी ट्राई करता हूँ, ये दो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बाद में देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स डिविजिबल बाय 4? Sir, all of these, all of these. ऑल बस, ऑफ दीज। देखो, इसको टाइम लगा, इसको Right. टाइम लगा, बट इफ यू डू दिस इट टेक हार्डली 10 सेकंड, नॉट इवन 10 सेकंड, 5 seconds, राइट? So you should do this. I would have avoided this. I would have avoided 33 also, right? You got this point? बाकी देखो, तुम्हारा जितना इजी कर सकते ना, सी आई कुड हैव अवॉइडेड दिस आल्सो, बिकॉज ये दिस आल्सो रिक्वायर कैलकुलेशन, राइट? सो बहुत ज्यादा जरूरत है जहां पे तुमको व्हाट यू वांट टू डू इज कि यू वांट टू डू इट, इफ यू लीव दिस 2 or 3 क्वेश्चंस यू कैन डू मोर 5 or 6 क्वेश्चंस, राइट? करेक्ट? ओके, नाउ सिंस यू वांट हाउ टू डू इट, अच्छा मेरा वीडियो क्यों बनता है? ठीक है, ओके। Now, what is the conversion? What is the highest? Length mass capacity, right? चलो, लेंथ मास कैपेसिटी क्या होता है? मिश्का, माइक क्यों बंद है बेटा? No. ऋत्वी, वीडियो बंद है। No, no. ऋत्वी, you want to keep the video off. Don't come to my class. Mama, no. ऋत्वी, are you clear? Yes, sir. Why kept a video off? Sir, I didn't realize. Mama, no. हाँ, Sir, I didn't realize. Sorry. रियलाइज क्या होता है? I always क्लिक करोगे तो do. समझ में नहीं आएगा तुम्हारा वीडियो ऑफ है। अभी भी ऑफ है, Sir, अभी तो ऑन किया। दिख रहा है तेरे को सामने? एंड इट हैज टू केप्ट एवरी टाइम। लैपटॉप है कि इस पे है? व्हाट आर यू ऑन टू? iPad, sir, my laptop is not working. अभी भी वो काम नहीं कर रहा है? तूने बोला पापा फिक्स कर देंगे। सर वो वर्क नहीं हो रहा। ओके, ठीक है, ओके। नाउ व्हाट इज लेंथ मास कैपेसिटी?
So capacity is like how much Sir, Let him complete once. Don't interfere. One person is talking. Very bad habit to get interfere. Let her finish. Yes, Riti bolo. So basically, capacity is like, can I give an example? नहीं, example नहीं चलेगा. Brian बोलो. sir, a capacity is the length of the One word. चलो out. Shirin, Amount of liquid. one word. Sir, volume. सही जवाब. Volume. Right? Capacity is volume. sir. So basically, to measure the liquid, okay, listen, Rari. To measure the liquid, you use volume or a capacity, right? Any container who in 3 dimension, which holds the liquid, which is a capacity. What is the length? What you can measure with the length? Scale. What is length? Length, depth, height, width, breadth, depth, distance. Everything you can measure with a. क्या हो गया देवांश? ओए, कहाँ में ध्यान है? हाँ? कहाँ ध्यान है? क्या? Correct? ठीक है? So any distance you want to find, small or a big, you use length, right? Length is a concept. Then your mass. Okay, mass is what? Amount Sir, of the matter. weight of an object. Right. Weight कैसे आता है? Mass into gravity, right? So physics अगर तुम पढ़ोगे तो उसके अंदर होता है mass into क्या हो गया? दर्श क्या शेयर कर रहा है? गलती से हो गया सर. ठीक है? Clear? So it mass into density will become the weight, right? अपना mass जो है, I am only 7 kg right now. My mass is only 7 kg, but my weight is 69 kg or 68 kg, right? Because I am on earth. अगर मैं मून में जाऊं तो वो बहुत ज्यादा होगा, सॉरी कम होगा, या if I go to some space I'll become weightless, right? I become only 7 kgs. Clear? So that is how you want to mass is a weight. मास को तो वेट से भी अभी अर्थ में, इसलिए हम वेट भी कंसिडर कर सकते हैं. तो एनीथिंग विच इज हेवियर और लाइटर वी कैन यूज विद दिस. अब उसका यूनिट क्या होता है? व्हाई आई एम टेकिंग ऑल थ्री टुगेदर? बिकॉज ऑल हैव अ सेम कन्वर्जन. देयर इज अ बेसिक यूनिट, मीटर इज अ बेसिक यूनिट, then you have gram is the basic unit and liter is the basic unit, right? Then on the higher side you have kilo and you have milli. You know what is kilogram, kilometer and kiloliter, yes or no? Yes. Yes, sir. Then you know what is meter, gram and liter. You know what is milligram, millimeter and milligram and centimeter. You know that, right? Yes. Correct. But I'm just showing you the order in which you can do it. Every order, when you put it from bigger to smaller, you have to multiply by 10. And every order, any unit, you go from smaller to higher, you have to divide by 10. Correct? That is why I take usually length, mass, capacity together. मैं अभी तुमको भेजता हूँ. ठीक है? Honestly, I have taken this in grade 4. मैं तुमको देखो, मैं तुम्हारे सामने आई एम ओपनिंग दिस ग्रेड 4 का यूनिट, और उसके जो भी स्क्रीनशॉट भेजा ना, वो स्क्रीनशॉट मैं तुमको भेजता हूँ. ये देखो, ग्रेड 3 में भी सिखाया, ग्रेड 4 में भी सिखाया, राइट? ये ए में, बी में होगा. आजा भाई. ये ऑडियो सिखाया, थर्ड में सिखाया, सॉरी फोर्थ पे भी नहीं, थर्ड में सिखाया, बोलो. और तुम 6 में हो. ये देखो, लेट इट डाउनलोड. हाँ, ये देखो. ठीक है? ये देखो क्या है, द सेम थिंग आई एम सेंडिंग इट टू यू, राइट? आई एम सेंडिंग ओनली 2 ऑफ देम. सब भेज दूं? Please. ठीक है? सो इट गिव्स यू ऑर्डर, इन व्हाट ऑर्डर यू कैन पुट. मैंने अच्छे से लिखा हुआ है, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, राइट? सेकंड वाला
सॉरी, कुछ रखेगा क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं कुछ नहीं। सर आप उनका सिर्फ मतलब यूनिट लिख दो ना, सॉरी, उनका सिर्फ यूनिट। अच्छा सॉरी सर, मिल गया। करेक्ट, खाली यूनिट ही फर्क पड़ता है. हम्म। It is only the unit which is making a difference. That's it, nothing else. The kilo, now if you see here, if you see this, kilo, hecto, deca, basic, that is standard, deci, centi, milli. Okay, मैं इसके लिए ये बोलता हूँ, किंग हेनरी तुम लोगों ने सीखा होगा. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू लर्न. Yes, sir. King Henry died. नहीं, मैं डाई नहीं करता हूँ, मैं मारता नहीं हूँ. मेरे यहाँ किंग हेनरी, ओके, डांस बिकॉज ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क, राइट. चॉकलेट मिल्क से पीने से क्या होता है? एनर्जी आती है, राइट. एनर्जी आएगा तो डांस करेगा ना, करेक्ट है. हाँ। कीन हेनरी डांस बिकॉज ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क, बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क, राइट. So then you get King Henry dance because is basic unit, right? Then drinking chocolate milk, that is deci, centi, milli, basic, deca, hecto, and kilo. Kilo सबसे बड़ा है. When kilo to hecto you multiply by 10, and when you go milli to this upper you divide by 10. Correct. And if you see, this is a common for everything. Correct. समझ में आया? हाँ। इजी है. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो रोमन नंबर का भेजू तेरे को. सर उनका नाम ही याद नहीं रहता है मुझे। अभी याद रहेगा बेटा, थोड़ा एक बार सर पढ़ ले, मुझे एक वो बार. M वाली चीज नहीं क्या है वाली चीज? क्या है वाली चीज? लाइक मुझे वो नंबर समझ आते हैं पर लेटर्स नहीं समझ आते. कौन से लेटर बेटा? जैसे वो M आते हैं मतलब. रोमन नंबर हाँ. में? हाँ, हाँ, रोमन नंबर का मैं तुमको भेज दूंगा. ठीक है, आई सेंड यू. ठीक ठीक है, है. चल, बाय. क्लियर? ठीक है, हाँ, sir. बाय.